Hello students, this is Rahmat Khan from Shivjyoti Educational Group. I hope you all are fine and doing well at your home. Dear students, today we are going to continue with chapter 2 of history, that is Socialism in Europe and the Russian Revolution, the part 2. The topics which we are going to cover in this chapter are: first, support for socialism. We all know what was socialism. Socialism wherein it was thought by the socialists, the people, that the resources of the country must be utilized equally by the people of the country. That was the thinking of socialist. Fine. So we are going to talk about support for socialism. We are going to talk about SDP. Now what is SDP? Social Democratic Party. We are going to talk about Labour Party in Britain. After that, Socialist Party in France. We are going to talk about the Russian Revolution. Very important. And in Russian Revolution, we are going to understand the economy and the society of Russia before the revolution, socialism in Russia, the Russian Socialist Democratic Labour Party, okay, division of Bolsheviks and Mensheviks, how this party got divided later on, we are going to understand about that, and the 1905 revolution, and very important incident in the history, that is the Bloody Sunday, and at last, we are going to discuss about the First World War and the Russian Empire. So let us start with this chapter. So first we are going to talk about support for socialism. How the support came for socialism. We all know that in Europe there were different kind of people with different ideology. That is radicals, conservatives and liberals. Right? Now the socialist, how the support came, we will understand. First of all, socialists formed an international body, that is an association. इन लोगों ने एक group बनाया at international level, namely the Second International. So the name of the group was the Second International. They set up funds for helping members in times of distress and demanded a reduction of working hours and the right to vote. Now this association, they helped the members of this association. इनके members जो थे, जो problem में थे, उनको help करने लगे, fund देने लगे, and they demanded reduction of working hours. तो इन्होंने क्या demand किया? जो काम के hours थे, जो working timing था, उसको कम किया जाए, and right to vote. This was the demand of Second International. In Germany, this association worked with the Socialist Democratic Party and helped in winning the parliamentary elections. और जर्मनी के अंदर इस ग्रुप ने किसके साथ वर्क किया? सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ वर्क किया और वहां पे इनकी मदद से उन्होंने क्या जीता? पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जीते. एंड इन 1905 सोशलिस्ट एंड द ट्रेड यूनियनिस्ट, जो सोशलिस्ट थे, ओके, और जो ट्रेड यूनियनिस्ट थे, ट्रेड यूनियनिस्ट आर दोज पीपल who are the members of the trade unions, okay, leaders of the trade unions, okay. Socialist and the trade union formed a labor party in the Britain. और इन्होंने कौन सी पार्टी फॉर्म की? लेबर पार्टी इन ब्रिटेन. तो सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट इन दोनों ने मिलकर they formed a party called Labour Party in Britain and a socialist party in France. Okay, this party were formed in 1905. Socialism, however, could not lead. Precede का मतलब है lead the influence of the radicals, liberals and conservatives. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि socialism इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाया. Okay? Let's talk about the Russian Empire in 1914. Let's talk about the Russian Empire. In textbook page number 30, there is a title, The Russian Revolution. And if you read the starting paragraph of the title, page number 30 of our textbook, okay, in one of the least industrialized European states, this situation was reversed. Socialists took over the government in Russia through October Revolution of 1917. We are going to talk about that later. The fall of monarchy in February 1917. That means the monarchy fell down, मतलब गिरे नहीं, उनका रूल खत्म हो गया. कब? February 1917. And the events of October are normally called the Russian Revolution.
So this is all called Russian Revolution, which is there in the first paragraph. But how did this come about? ये कैसे हुआ, कैसे उस राजा को ओवरथ्रो किया गया? That is all we are going to understand now. To answer this, let us go through all this. Okay? Yes. So we were talking about the Russian Empire in 1914. So we should know what was the scene before. In 1914, Tsar Nicholas II was the king, okay, ruled Russia. So यहाँ पर रशिया के अंदर हम देख रहे हैं 1914 में Tsar Nicholas II ruled Russia. So who was the ruler here? Tsar Nicholas II. Fine. The Russian Empire included current day Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, parts of Poland, Ukraine, Belarus, Central Asian states, Georgia, Armenia. Okay, all this place were there. Because पहले हम जानते हैं बेटा that there were no nation states. पहले कोई देश नहीं हुआ करते थे, डायनेस्टी, राजा महाराजाओं की सल्तनत हुआ करती थी, जिन पे उन्होंने कब्जा कर लिया वो पार्ट उनका हुआ करता था. सो अर्लियर इस वजह से इतने पार्ट्स रशिया के अंदर इंक्लूडेड थे जो आज अलग अलग स्टेट्स है. फाइन. नाउ द मेजॉरिटी रिलीजन वाज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी. सो एट दिस टाइम in Russia the majority religion was Orthodox Christianity. What do you mean by Orthodox Christianity? Orthodox का मतलब होता है पुराने ख्यालात के, right? So Christianity we all know ईसाई धर्म. So at this time majority religion in Russia was Orthodox Christianity. But empire also included Catholics, Protestants, Muslims and Buddhists. इसके अलावा वहाँ पर Catholics भी थे, Protestants भी थे, Muslims भी थे and Buddhists थे. Now you might be thinking what is the difference between Catholics and Protestants? ईसाई धर्म के अंदर दो ग्रुप्स होते हैं बेटा, that is Catholics and Protestants. Fine? Yes. Now let's talk about the economy and society of Russia. We are going to talk about economy and society of Russia. Okay? About 85% of the Russian population practiced agriculture. So हम देख रहे हैं रशिया के अंदर जो मेन ऑक्यूपेशन था, जो लोगों का मेन काम था, that is 85% of the Russian population practiced agriculture. Cultivators produced for both market and their own needs. और जो कल्टीवेट करते थे वो मार्केट के लिए भी करते थे और खुद के इस्तेमाल के लिए भी किया करते थे. Industries were few in number. Saint Petersburg and Moscow were the prominent industrial areas. There were no much number of industries, इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं थी, but the famous places जहां पे इंडस्ट्रीज ज्यादा थी, they were Saint Petersburg and Moscow. यहां पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज थी. Okay? Now the 1890s was the period many factories were set up when the Russian railway network was extended. 1890s के दरमियान जब रेलवे नेटवर्क बढ़ता गया वैसे वैसे आपकी फैक्ट्रीज भी बढ़ती गई और सेटअप होती गई. So the railway network boosted the industries. Region investment in industry increased. तो आपका increase हो गया industries and the one reason was the railway network. Coal production doubled and iron and steel output को डाल अप, दैट इज वो आपका बढ़ गया. ठीक है, क्या हो गया? कोल प्रोडक्शन डबल हो गया और आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन जो है आपका वो भी आपका बहुत डबल हो गया, आगे बढ़ गया. क्यों? बिकॉज रेलवे नेटवर्क्स और बाकी सारी इंडस्ट्रीज के लिए आपका बहुत ज्यादा आयरन एंड स्टील की जरूरत थी. फाइन. एंड गवर्नमेंट supervise large factories for ensuring minimum wages and limited hours of work. और जो गवर्नमेंट था वो देख रहा था, सुपरवाइज कर रहा था, चेक कर रहा था कि दैट द फैक्ट्रीज आर एंश्योरिंग मिनिमम वेजेस. ऐसे नहीं कि जो वहां काम कर रहे हैं उनको कम पेमेंट मिल रही है, कम वेजेस मिल रहे हैं, एंड वर्किंग आवर्स आर ऑल्सो लेस. ओके, वहां पे वो काम भी बहुत ज्यादा नहीं करा रहे हो. ये कौन देख रही थी? गवर्नमेंट सुपरवाइज कर रही थी. ओके, दिस वाज अबाउट इकोनॉमी एंड सोसाइटी. Okay, so the working hours for the craft units and small workshops was 15 hours and that of the factory was 10 to 12 hours. तो हम यहाँ देख सकते हैं जो क्राफ्ट यूनिट्स में काम करते थे एंड द स्मॉल वर्कशॉप्स में जो काम करते थे, दे हैड टू वर्क फॉर 15 आवर्स. 15 घंटे के लिए उनको काम करना पड़ता था. पर आज टुडे अकॉर्डिंग टू द लेबर लॉज, इंडिया के अंदर जो हमारा लेबर लॉ है उसके अकॉर्डिंग हम 12 घंटे से 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते. ओके, उससे ज्यादा अगर काम कराते हैं सो दैट वी शुड गेट द
extra payment for that. But यहाँ हम देख सकते हैं earlier times क्या हो रहा था, 15 hours was the working time for the people working for craft units and workshop units, and those who were working in factory was 10 to 12 hours, right? Women made up 31% of factory labor's force by 1914. मतलब 1914 में 31% जो है वो वुमेन वर्कर्स वहां पे काम करते थे, बट दे वर पेड बिटवीन हाफ एंड 3/4 ऑफ मैन्स वेज. मतलब मैन के मुकाबले उनको आधी पेमेंट मिलती थी, बहुत कम पेमेंट मिलती थी. Okay, this was a drawback, disadvantage, or this was a bad thing which was happening at that time. We should never discriminate between man and woman, but we can see the discrimination. हम यहाँ देख सकते हैं कि कैसे man को ज़्यादा पैसे मिलते थे और woman को कम, because they thought that man will work more and woman will work less. Okay, man ज़्यादा मेहनत करता है, woman कम मेहनत करता है, ऐसे उनका मानना था. Workers association were formed for helping members in times of financial hardships or unemployment. So workers के association group set up किए गए. Why this association was formed? To help the members, the workers. बुरे वक्त में जब उनके पास पैसे नहीं होंगे, काम नहीं होगा, इस वक्त में मदद करने के लिए ग्रुप्स बनाए गए, वर्कर्स की हेल्प करने के लिए. ओके, 1896 to 1897 वर्कर्स स्ट्राइक इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. इस वक्त में वर्कर्स ने स्ट्राइक किया. दे स्टॉप्ड वर्किंग बिकॉज दे वर नॉट हैप्पी विद द कंडीशंस. ओके, 1902 वर्कर्स स्ट्राइक इन द मेटल इंडस्ट्री. ओके, 1896 1897 वर्कर्स ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कपड़ों की इंडस्ट्री में स्ट्राइक किया, और 1902 में मेटल इंडस्ट्री में स्ट्राइक हुआ. ओके, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च owned large properties. जो राजा था और जो चर्च थे, ओके, जो प्रिस्ट थे, वो लोग जो थे, they were upper class और इनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी थी. ओके, they were the owner of large property. The peasants disliked the nobility. और peasant nobility के खिलाफ थी. We already learned in the French Revolution, right? Nobility जो राजा के लिए काम करते हैं, ओके, सैनिक जो होते हैं, they are the nobilities. Nobles got their power and position through their services to the Tsar. जो nobles थे उनको पावर कहां से मिलता? Through the services to the king. राजा की सर्विस करते वो और उनको बदले में पावर मिलता. Right? Now we can see here 1902 to 1905 in Russia, peasants wanted the land of the nobles to be given to them. 1902 से लेके 1905 में क्या हुआ? जो वहां के किसान थे, पीजेंट्स मतलब जो किसान थे, दे डिमांडेड, जो नोबल्स थे, राजा की आर्मी में जो काम करते थे लोग, उनकी जो लैंड्स थी वो हमें दे दो. ये किसने कहा? पीजेंट्स ने डिमांड किया ये. ठीक है ना? They refused to pay the rent and also murdered the landlords. उन्होंने मना कर दिया, हम रेंट नहीं देंगे, ये जमीनें हम ही दे दो. एंड दे किल्ड लॉट ऑफ पीपल, लैंडलॉर्ड्स, जमींदारों को उन्होंने मार दिया. दिस इज वेरी बैड. किसी को मारना बहुत बुरा होता है, बट हिस्ट्री हम देख सकते हैं कि क्या क्या हुआ हिस्ट्री में. राइट? यस. Peasants in Russia pulled the land together periodically and their commune. That is, we are going to understand what is a commune. Okay, peasants जो थे रशिया के अंदर, they pooled their land together periodically and their commune, he divided it according to the needs of the individual families. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कम्यून कौन होता है, जिसको हम मीर कम्यून भी कहते हैं. सो जब भी ये वर्ड सामने आए, कम्यून एंड मीर कम्यून, we should know that मीर और कम्यून in Russia हिस्ट्री, रशियन हिस्ट्री के अंदर आपका a self governing community of peasants households that elected its own officials and controlled local forest, fisheries, hunting grounds and vacant lands. तो कम्यून क्या था? एक ग्रुप था of elected members जो सब ओवरऑल मिलके काम करते थे और प्रॉफिट इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे. सो हमने देखा peasants in Russia pooled their land. उन्होंने जमीनों पे जो भी प्रॉफिट होता था, मतलब फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए दे हैव 5 हेक्टर ऑफ लैंड, 5 हेक्टर्स ऑफ लैंड. अब उस पे जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वली शेयर करेंगे. ठीक है? सो दिस वाज द थिंग दैट वाज फॉलोड बाय द पीजेंट्स. लेट्स टॉक अबाउट सोशलिज्म इन रशिया. लेट्स टॉक अबाउट सोशलिज्म रशिया. बिफोर 1914
ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वेर इलीगल इन रशिया। 1914 के पहले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो सारी इलीगल थी। दैट मीन्स नोबडी वाज अलाउड टू कम अप विद पॉलिटिकल पार्टीज। 1898 the Russian Social Democratic Workers Party was founded which operated illegally due to the government policy। तो 1898 में एक ऐसी पार्टी थी, the party name was Russian Social Democratic Workers Party। Now it was founded and operated illegally। illegally क्यों ऑपरेट करने के लिए बोला है यहाँ पे? Because no party was allowed before 1914। तो ये छुप के illegally काम कर रहे थे this party। Fine। It set up a newspaper, mobilized workers and organized strikes। इस पार्टी ने न्यूज़पेपर प्रिंटिंग प्रेस सेटअप किया और पेपर के तहत, न्यूज़पेपर के तहत उन्होंने लोगों तक अपनी बातें पहुंचाई और लोगों को अपने तरफ किया और वर्कर्स को लेके उन्होंने स्ट्राइक्स करना शुरू किया। इन 90s एक्टिव सोशलिस्ट इन द कंट्री साइड फॉर्म द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। और हम देख सकते हैं 1900 का टाइम था जहां पे जो सोशलिस्ट थे कंट्री साइड मतलब विलेज साइड में, उन्होंने एक पार्टी बनाई। पार्टी का नाम था सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। ठीक है। द पार्टी डिमांडेड पीजेंट्स राइट एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड्स फ्रॉम द नोबल्स टू द पीजेंट्स। तो इस पार्टी ने क्या डिमांड किया? किस पार्टी ने? सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी डिमांडेड दैट द लैंड शुड बी ट्रांसफर्ड टू द पीजेंट्स। जो नोबल्स की लैंड थी वो किसको दी जाए? पीजेंट्स को दी जाए। पीजेंट्स कौन थे? किसान थे। राइट। नाउ Vladimir Lenin, okay, very important personality, Lenin led the Bolshevik, एक group था, okay, Bolshevik group, and believed that in the repressive society, the party should be disciplined and should control the number and quality of its member. This was the thinking of Lenin. So Lenin was the leader of Bolshevik party, okay, yes. The other socialist group named the Bolshevik and voted entry for all in the party. There were two groups here, Bolshevik and the Bolshevik. Let's talk about the 1905 revolution. So the 1905 revolution, liberals in Russia wanted the abolition of the autocracy of the Tsar। जो लिबरल्स थे वो क्या चाहते हैं? ऑटोक्रेसी को खत्म की जाए। ऑटोक्रेसी इज व्हेन द होल पावर आर एंजॉयड बाय वन सिंगल पर्सन। तो हम जानते थे कि रशिया के अंदर जो जार थे, दैट इज अ किंग, एंजॉयड ऑल द पावर्स। ऑटोक्रेटिक का मतलब ये है वो किसी की नहीं सुनते थे, वो जो भी करते थे वो खुद के ही करते थे। ओके। सो मोनार्की आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरह की मोनार्की होती है। मोनार्की का मतलब होता है राजा का रूल। सो देयर आर टू थिंग्स हियर। दो तरह के राजा का रूल होता है। एक इज एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की मींस ऑल द पावर्स आर इन द हैंड ऑफ द किंग। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब यह है देयर विल बी सम ग्रुप मेंबर्स इलेक्टेड बाय द पीपल, सेलेक्टेड बाय द पीपल, एंड द किंग इज आंसरेबल टू देम। राजा अपनी मनमानी नहीं कर सकते, जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो उनको भी बताना पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। सो अगर ऐसा होता तो लिबरल्स एक्सेप्ट करते, बट इन रशिया देयर वाज ऑटोक्रेटिक रूल, ऑल द पावर्स वर इन द हैंड ऑफ Tsar। ओके। सो इन 1905 liberals and the social democrats and the socialist revolutionaries along with the peasants and the workers revolted for the constitution। मतलब 1905 में सारे ग्रुप, सारे पार्टीज मिलकर किसके खिलाफ हो गए? जार के खिलाफ हो गए, किंग के खिलाफ हो गए। फाइन। सपोर्टेड बाय द नेशनलिस्ट इन द एम्पायर एंड द जद्दिस्ट, ओके, हु वर दिस वांटेड मॉडर्नाइजिंग इस्लाम टू लीड देयर सोसाइटीज। सो जद्दिस्ट कौन थे? वो चाहते थे कि इस्लाम को और बेटर बनाया जाए। ओके। in Muslim dominated areas, they all supported this। Now I request you to please jot down the important internal question here। ठीक है। पेज नंबर 33, पेज नंबर 33 जहां पे न्यू वर्ड्स लिखा है, जहां पे न्यू वर्ड्स लिखा है, पेज नंबर 33 जहां पे न्यू वर्ड्स लिखा है, ठीक उसके ऊपर ऑन द टॉप यू राइट द क्वेश्चन,
Who were Jadidis? Okay, and the answer is there in the new words. Muslim reformers within the Russian Empire is the answer. Please mark this in your textbook. पेज नंबर 33 न्यू वर्ड्स में है ये, ठीक है. यस, आगे बढ़ते हैं. कॉजेस. नाउ व्हाट वाज द कॉज ऑफ 1905 रेवोल्यूशन? 1905 आंदोलन जो हुआ, रेवोल्यूशन जो हुआ, उसका कारण क्या था? कॉजेस, कारण क्या है देखते हैं. ओके, क्यों लोग नाराज हुए, क्यों लोग भड़के? ठीक है. नाउ द कॉजेस वेर in 1904 prices of the essential good increased while the real income declined by 20%. मतलब 1904 में हालात बिगड़ गए. It was very worst because the prices वो क्या हो गए आपके, बढ़ गए. मतलब जो चीजें थी, जो खाने की चीजें थी, बाकी सारी चीजें थी, उसके दाम इतने बढ़ गए और जो अर्निंग थी लोगों की, जो वो कमा रहे थे, उसका वैल्यू घट गया. प्राइसेस इंक्रीज्ड, मतलब जो वो कमा रहे थे उससे ज्यादा तो चीजों की प्राइस बन गई, तो जो कमा रहे थे उसका वैल्यू अपने ऑटोमेटिक क्या हो गया, 20% डिक्लाइन हो गया. ठीक है. हाँ, फॉर एग्जाम्पल आई विल जस्ट गिव यू एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस लाइन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आई एम गेटिंग 40,000 सैलरी और शक्कर आपकी 50 रुपीज किलो है, बट इमेजिन वेयर द शुगर इज 500 रुपीज किलो. तो मेरा जो 40,000 है उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि चीजें अगर इतनी महंगी हो जाएगी तो मैं जो कमा रहा हूं वो उसका वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगा, डिक्लाइन हो जाएगा. दैट इज व्हाट इट इज सेइंग. ठीक है. प्राइसेस ऑफ द एसेंशियल गुड्स इंक्रीज्ड व्हाइल द रियल इनकम डिक्लाइंड बाय 20%. द डिसमिसल ऑफ 4 मेंबर्स ऑफ द असेंबली of the Russian workers at the Putilvo iron workers called for industrial action. तो हमने देखा इंडस्ट्रियल वर्कर्स को निकाला गया बिकॉज ऑफ देयर डिमांड. दे डिमांडेड, उन्होंने डिमांड किया हमें अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट दीजिए, वेजेस दीजिए, टाइम कम कीजिए. एंड बिकॉज ऑफ देम द 4 मेंबर्स वेर डिसमिस्ड फ्रॉम द असेंबली, फ्रॉम द ग्रुप. नाउ बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंड? Bloody Sunday. Now what was Bloody Sunday? Very important. 10,000 workers in St. Petersburg went on strike demanding the reduction in the working day to 8 hours. तो 10,000 वर्कर्स आपके स्ट्राइक पे चले गए, उन्होंने आंदोलन किया. क्यों? वो चाहते थे काम के आवर्स कितने हो, 8 आवर्स, एंड एन इंक्रीज इन द वेजेस. और वो चाहते थे वो जो पैसा मिलता था उनको काम का, उसमें भी इंप्रूवमेंट हो. नाउ there is a confusion between the students. बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं the difference between wages and salary. to confusion दूर करने के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं what is the difference between wages and salary. सैलरी आपको मंथली मिलती है और वेजेस आपको डेली बेसिस पे मिलती है. जो आप आज काम करोगे उसका पैसा आपको आज मिलेगा, दैट इज द वेज. ठीक है. वेजेस आर नॉट फिक्स्ड बट सैलरी इज फिक्स्ड. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेजेस. डू रिमेंबर दिस. ठीक है. हाँ, so we were talking about Bloody Sunday. On what is Bloody Sunday? Let us understand. 10,000 workers in St. Petersburg went on strike demanding the reduction in working hours. They wanted to make it for 8 hours. तो 10,000 वर्कर्स चाहते थे सेंट पीटर्सबर्ग में कि वर्किंग आवर्स कितने हो, आपका 8 आवर्स का हो, साथ ही साथ वेजेस भी इंक्रीज हो, हमारे वेजेस भी ज्यादा मिले हमें, एंड इम्प्रूवमेंट, है ना. और वो चाहते थे एंड इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशंस, और हमें जहां काम कर रहे हैं वहां पे भी कंडीशंस आपकी इंप्रूव हो. दिस वाज द डिमांड ऑफ द वर्कर्स. फाइन. नाउ दिस वर्कर्स वेर लेड बाय फादर गेपोन. कौन, किसने लीड किया इनको? फादर गेपोन. ठीक है. नाउ ओवर 100 वर्कर्स वेर किल्ड एंड अबाउट 300 वुंडेड. इन वर्कर्स पे वहां के पुलिसमैन ने अटैक कर दिया. ओके. एंड अटैक करने के बाद में 100 वर्कर्स वर किल्ड एंड अबाउट 300 wounded. नाउ दिस इंसिडेंट इज नोन एज द ब्लडी संडे एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द 1905 रेवोल्यूशन. और इसी को हम कहते हैं ब्लडी संडे, और यही एक कारण था 1905 रेवोल्यूशन का. ठीक है. नाउ वी कैन सी हियर. ओके, हम यहां देख सकते हैं स्ट्राइक्स टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री, यूनिवर्सिटीज क्लोज डाउन एंड स्टूडेंट बॉडीज स्टेज्ड वॉकआउट्स कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज. जब ऐसा हुआ बिकॉज ऑफ ब्लडी संडे, हर जगह पे स्ट्राइक्स होने लगे,
सब क्लोज डाउन होने लगा, यूनिवर्सिटीज हो गए, स्टूडेंट्स रास्ते पे आ गए, दे वॉकड आउट, है ना, एंड दे कंप्लेन कि हमारी कोई आजादी नहीं, लोगों की कोई आजादी नहीं है. Lawyers, doctors, engineers and other middle class workers established the Union of Unions and demanded a constituent assembly. सब मिल गए और उन्होंने क्या डिमांड किया? Constituent assembly. That means यहां पर अब राजा का रूल नहीं, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का रूल होगा. मतलब राजा को एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. ठीक है. नाउ द जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टिव पार्लियामेंट और ड्यूमा. जार जो राजा था उनको पता था कि ऑल द पीपल हैव कम टुगेदर, सारे लोग एक हो गए हैं, एक्सेप्ट करना पड़ेगा. अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो द किंग वुड बी इन ट्रबल, प्रॉब्लम, है ना. सो ही एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ द पीपल, है ना, एंड ही सेड देयर विल बी अ कंसल्टिव पार्लियामेंट. लोगों का एक ग्रुप होगा, पार्लियामेंट होगा, जिसको हम कहते हैं ड्यूमा. व्हाट इज ड्यूमा? द पार्लियामेंट. द पार्लियामेंट इज कॉल्ड ड्यूमा. ये ड्यूमा वर्ड बार बार आपको सुनने को मिलेगा. सो रिमेंबर, इट इज अ लेजिस्लेटिव बॉडी, ओके, ग्रुप ऑफ पीपल. द जार डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी और एनी रिडक्शन इन हिज पावर. He changed the voting, okay? He changed the voting laws and packed the third Duma with conservative politicians. तो जार ने, राजा ने क्या किया? वो नहीं चाहते थे कि कोई उनको सवाल पूछे, वो किसी को जवाब दे. इस वजह से उन्होंने ड्यूमा जो थे, जो पार्लियामेंट के ग्रुप्स के लोग थे, उनको किसके साथ डाल दिया? कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस. नाउ हु वेर कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस? कंजर्वेटिव वेर दोज पीपल हु सपोर्टेड द किंग. वो चाहते थे जो पुरानी चीजें हैं, मोनार्क रूल है, राजाओं का रूल जो है वो बरकरार रहे, उनके साथ उनको इंक्लूड कर दिया ताकि ड्यूमा को वो सपोर्ट करेंगे, राजा को वो सपोर्ट करेंगे और ड्यूमा क्या हो जाएगा? आपका पार्लियामेंट क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा. दिस वाज द थिंकिंग ऑफ द जार. ठीक है. नाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन रेवोल्यूशन. ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन रेवोल्यूशन. So, when we talk about the First World War, in 1914, First World War broke out between two European alliances. तो आपका जो First World War है, दो alliance के बीच में start हुआ. That is Germany, Austria and Turkey, the central power, okay, and France, Britain and Russia, later Italy and Romania, allied powers. ठीक है. Now, in 1914 and 1916, रशियन आर्मीज लॉस्ट बैडली इन ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी. तो 1914 और 1916 में रशियन आर्मी जो है वो हार गई बहुत बुरी तरीके से. कहां पर? ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी में. ओके. इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रशिया देन एल्सवेयर इन यूरोप. और इंडस्ट्रीज जो थी वो कोलैप्स होने लगी, गायब होने लगी, रुक सी गई बहुत जल्दी. ओके. यस. Labor shortage and small workshops producing essential were shut down as able-bodied men were called for the war. जो आपके वर्कशॉप्स थे और आपके जो जहां पे वर्किंग एरियाज थी उस सबको बंद कर दिया और जो लोग थे उनको वॉर के लिए बुलाया गया और लोगों की जरूरत थी. ठीक है. By 1916, riots and bread shops were common owing to the bread and flour scarcity. तो क्या हुआ? हमने देखा 1916 में लोग लड़ने लगे ब्रेड शॉप्स पे, खाने के लिए कुछ भी नहीं था, आटा नहीं था, एंड दे स्टार्टेड फाइटिंग. द फाइट्स वेर कॉमन. तो हम देख सकते हैं कि द प्रॉब्लम्स वेर इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द वॉर. ओके. सो डियर स्टूडेंट्स, we'll stop here for this chapter. I request you to go through the whole video, okay, and study regularly. Take care of yourself. Thank you very much. God bless you. Have a nice day.